Assalamu alaikum and welcome to Unlock Pharma with Dr. Umair. In today's lecture, we will discuss a very important topic which is known as adsorption. So, what is adsorption? Adsorption is actually the adhering of substance to the solid surface. कोई भी सब्सटेंस हो जो कि किसी भी सॉलिड सरफेस पे एडहेयर करेगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एड्सॉर्प्शन कहेंगे. बाय एडहेयरिंग हमारे पास क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन होगी किसी भी सरफेस पे तो वो कंसंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा हो जाएगी. लेट्स सपोज वी हैव अ सॉलिड सब्सटेंस. लेट्स सपोज दिस इज सॉलिड सब्सटेंस सरफेस. अब इस पे मटेरियल आके एडहेयर करेगा इसके सरफेस के ऊपर एडहेयर करेगा. तो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का किसी भी सॉलिड सरफेस पे एडहेयर होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन. अब एड्सॉर्प्शन में हमारे पास दो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो कि एक है एड्सॉर्बेट और दूसरा है adsorbent. One is adsorbate while the other one is adsorbate. What does adsorbate and adsorbent means? Let's suppose this diagram. हमारे पास यहां पर सॉलिड सब्सटेंस जो है वो एडहेयर कर गया है इस सरफेस पे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन. अब ये जो सॉलिड सब्सटेंस इस सरफेस पे एडहेयर हो गया है तो इस सॉलिड सब्सटेंस को या इस मटेरियल को हम क्या है कहेंगे? इसको हम कहेंगे एड्सॉर्बेट. एड्सॉर्बेट. So adsorbate is actually the material that will be attached to the solid surface. Adsorbate is the material that will be attached to the solid surface. और जो ये वाला सरफेस है, ये वाला, ये जिसने सॉलिड मटेरियल को अपने ऊपर एड्सॉर्ब किया हुआ है, तो इस सरफेस को हम कहेंगे एड्सॉर्बेंट. Adsorbent. So adsorbent is actually the surface या the area which adhere the adsorbate. सही है? Adsorbent is the surface या the material that adhere या that adsorb the adsorbate. So these are basic two terminologies which will be used in the process of adsorption. What is adsorbate and one is adsorbent. So this was all about adsorbate and adsorption. So अगर हम adsorption की बात करते हैं तो adsorption हमारे पास दो तरह की होती है. One is Physisorption while the other one is Chemisorption. Remember the word sorption. The word sorption denotes both adsorption and absorption. जब हम sorption की बात करते हैं तो sorption adsorption को भी डिफाइन करता है और absorption को भी डिफाइन करता है, लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या है कि एक में एडहेरिंग होगी और एक में पेनिट्रेशन होगी. एड्सॉर्प्शन में क्या होगा कि एडहेरिंग होगी, जबकि अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात कर ले तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? पेनिट्रेशन होगी. किसी भी सरफेस में पेनिट्रेट करेगा कोई भी इनकमिंग मटेरियल जो भी, जैसा कि अगर हम स्पॉन्ज की बात कर ले और उसको हम पानी में रखें तो वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा. अगर हम एक्टिवेटेड चारकोल की बात करें या मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट के सरफेस के ऊपर मटेरियल एडहेयर होंगे तो उसको हम कहेंगे एड्सॉर्प्शन, जबकि पानी का पेनिट्रेट कर जाना स्पॉन्ज में उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन. सो हमारे पास दो तरह की एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होती है, एक होती है फिजिसॉर्प्शन, दूसरी होती है केमिसॉर्प्शन. सो व्हाट इज फिजिसॉर्प्शन एंड व्हाट इज Chemisorption? As the name indicates, Physisorption and Chemisorption. So Physisorption is actually the physical attachment of any material to the surface. There will be no chemical bonding or sharing of electron between the adsorbate and the adsorbent. Only
physical attachment will occur in Physisorption. While as name indicates Chemisorption, there will be a chemical reaction between the adsorbate and the adsorbent. Transfer of electron, sharing of electron will occur between the adsorbate and the adsorption in Chemisorption. So this was all about Chemisorption and Physisorption. Now how will we identify either the process is Chemisorption or the process is Physisorption? There should be some properties that differentiate, they distinguish both from each other. So there are several properties which we will discuss in detail, that how Chemisorption and Physisorption differentiate from each other. So here we will explain all of the properties that will identify Physisorption and Chemisorption. So number one, adsorption forces. From adsorption forces we will identify either the process is Chemisorption or Physisorption. What does adsorption forces means? Adsorption forces mean that with which intensity the incoming material or the adsorbate adhere to the surface, adhere to the adsorbent. अगर हम Physisorption की बात करें, जैसे यहां पर हमने एक्सप्लेन कर लिया, देयर विल बी ओनली फिजिकल अटैचमेंट. फिजिकल अटैचमेंट या वीक इंटरेक्शन. फिजिकल अटैचमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वीक अटैचमेंट होगी, वंडरवाल फोर्सेस होगी जो कि इजीली डिटेच हो सकती है. तो अगर हम एडसॉर्प्शन फोर्सेस की बात करें तो Physisorption में क्या होगा? वीक attractive forces, weak attractive forces between the adsorbate and the adsorbent, such as van der Waals forces. अब अगर हम adsorption forces की बात करें Chemisorption के लिए, तो as we know there will be transfer of electron, sharing of electron between the adsorbate and the adsorbent, or there will be some chemical reaction involved between the adsorbate and the adsorbent. So no weak interaction will occur. So here transfer of electron. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग. स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन adsorbate and adsorbent. Second word is heat of absorption. हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है? तो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन एक्चुअली डिनोट करती है कि हमारे पास जो मटेरियल है वो स्ट्रांगली अटैच हुआ है या वीकली अटैच हुआ है. एज द प्रोसेस एक्सोथर्मिक हीट इवॉल्व होगा तो वो हमें बताएगा कि हमारे पास रिएक्शन किस तरह है. सही है. तो अगर हम फिजिसॉर्प्शन की बात करें तो हमारे पास लो एनर्जी प्रोसेस, low energy process. So low energy process means that the process is Physisorption. There will be weak interaction between the adsorbate and the adsorbent, and that can easily be removed from the surface. और अगर हम Chemisorption की बात करें तो Chemisorption में हमारे पास हाई एनर्जी. हाई एनर्जी का मतलब क्या है कि देयर विल बी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन adsorbate and adsorbent. जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो हमारे पास जो हीट इवॉल्व होगा वो ज्यादा होगा. और अगर हम फिजिसॉर्प्शन की बात करें तो हमारे पास हीट जो इवॉल्व होगा वो कम होगा. इसका मतलब है जो अटैचमेंट हुई है वो वीकली हुई है, वीक बॉन्डिंग इन्वॉल्व हुई है. नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी के रिएक्शन कैसा है, स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है. इसके बेस पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो किस तरह है. फिजिसॉर्प्शन हमारे पास स्पेसिफिक है या Chemisorption स्पेसिफिक है. तो स्पेसिफिसिटी क्या कहेगी हमें फिजिसॉर्प्शन के लिए? नॉन स्पेसिफिक. क्या होगा? नॉन. व्हाट डज नॉन स्पेसिफिक मीन्स? नॉन स्पेसिफिक मीन्स के कोई भी इन्वायरमेंट हो, कोई भी कंडीशन हो, हमारे पास मटेरियल आएगा, वो सरफेस पे अटैच होगा इंडिपेंडेंट ऑफ द कंडीशन. कि हमारे पास कंडीशन किस तरह है.
किसी भी इन्वायरमेंट में अगर हम उसको रखेंगे तो वो अटैचमेंट उसके साथ होगी। अगर हम मैग्नेट को ले ले, अगर हम मैग्नेट को किसी भी कंडीशन में उसको यूज करें तो हमारे पास अटैचमेंट उसमें पार्टिकल्स की होगी, या एक्टिवेटेड चारकोल की हम बात कर ले तो वो भी एक फिजिकल एडहेरिंग होगी वहां पर। अगर हम कीमिसॉर्प्शन की बात करें तो कीमिसॉर्प्शन क्या है? स्पेसिफिक है। व्हाट डज स्पेसिफिक मीन? कि एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन अगर होगी, क्या है स्पेसिफिक? स्पेसिफिक मतलब है कि एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन अगर होगी तो हमारे पास यहां पर इंटरेक्शन होगी, एड्सॉर्बेट अटैच होगा एड्सॉर्बेंट पे। अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं होगी रिएक्शन के लिए, तो जब रिएक्शन के लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं होते तो आपके पास रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता। जब रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता तो आपके पास वहां पर अटैचमेंट नहीं होगी, एडहेरिंग नहीं होगी, एड्सॉर्प्शन नहीं होगी। सो Physisorption is non-specific while Chemisorption is actually specific. Next है reversibility. रिवर्सिबिलिटी भी हमें बताती है कि हमारे पास जो एड्सॉर्प्शन हुई है वो फिजिसॉर्प्शन है या कीमिसॉर्प्शन है। तो जैसा कि एज वी नो दैट फिजिसॉर्प्शन इन्वॉल्व वीक अटैचमेंट सच एज वंडर वाल फोर्सेस, देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब वीक इंटरेक्शन होगी इसका मतलब है कि जो आपके पास फिजिसॉर्प्शन होगी वो रिवर्सिबल होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इजीली हम उसको रिवर्स कर सकते हैं पूरे प्रोसेस को। जबकि केमिकल सॉर्प्शन में क्या है कि आपके पास ट्रांसफर ऑफ या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, स्पेसिफिक कंडीशन होगी, तो आपके पास प्रोसेस क्या होगा? इररिवर्सिबल होगा, इररिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा फिजिसॉर्प्शन पे और केमिसॉर्प्शन में? जितना हम हीट देंगे वो इफेक्ट करेगा आपकी प्रोसेस को। वी नो दैट इन फिजिसॉर्प्शन देयर आर वीक इंटरेक्शन बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड द एड्सॉर्बेंट। जब वीक इंटरेक्शन होगी मींस के बॉन्डिंग वीक है, तो जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर will decrease the process of physisorption या will decrease the physisorption. Increase the temperature, decrease the adsorption process. जबकि कीमिसॉर्प्शन हमें पता है कि स्पेसिफिक कंडीशन पे डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक कंडीशन पे डिपेंड करेगा तो उस पर टेम्परेचर इफेक्ट नहीं होगा। तो स्पेसिफिक कंडीशन होगा तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा, प्रोसीड इन स्पेसिफिक कंडीशन। वो टेम्परेचर स्पेसिफिक कंडीशन से मतलब क्या है कि एक रिएक्शन है उसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, सही है। अब अगर वो टेम्परेचर मौजूद नहीं है, उस टेम्परेचर तक हम नहीं पहुंच सकते, तो हमारे पास केमिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, यहां पर जो इंटरेक्शन है वो नहीं होगी। तो इसलिए हम कहते हैं प्रोसीड इन स्पेसिफिक कंडीशन। जबकि फिजिसॉर्प्शन के लिए हम कहते हैं कि जैसा जितना हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं एनर्जी इंक्रीज होती है तो आपके पास डिटैचमेंट ज्यादा होगी। डिटैचमेंट ज्यादा होगी का मतलब है कि आपके पास जो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस है वो रिवर्स होगा। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के नंबर ऑफ एड्सॉर्ब लेयर। के नंबर ऑफ एड्सॉर्ब लेयर का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज दिस इज अ सॉलिड सरफेस, सही है। अब नंबर ऑफ एड्सॉर्ब लेयर क्या है कि यहां पर इसके ऊपर जो एड्सॉर्प्शन हो रही है वो कितना लेयर बनाए, कितने लेयर्स बनाएंगी, सही है। ये एड्सॉर्बेंट है, एड्सॉर्बेंट इसके ऊपर अटैच हो गया, सही है। ये क्या है? एड्सॉर्बेंट। ये एड्सॉर्बेंट हो गया और ये क्या हो गया? ये पार्टिकल, ये एड्सॉर्बेट हो गया। तो नंबर ऑफ एड्सॉर्ब लेयर। तो अगर हम फिजिसॉर्प्शन की बात कर ले तो एक स्पेसिफिक प्रेशर अगर हम उस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक लेयर बन जाएगा, सही है।
लेकिन अगर हम अंडर प्रेशर या इसमें प्रेशर ज्यादा करेंगे, सही है, अगर हम प्रेशर ज्यादा करेंगे तो इसके ऊपर और लेयर्स भी बनेंगे इस तरह। तो इनिशियली क्या है कि हमारे पास है मोनोलेयर एट reduce pressure, but when we increase the temperature, number of adsorbed layer will increase, but increasing the pressure increases the adsorb layer। इनिशियली क्या है आपके पास, मोनोलेयर है, ये वाला, ये फर्स्ट जो ब्लू में है ये मोनोलेयर आपके पास, अंडर रिड्यूस प्रेशर आपके पास एक लेयर बन गया, जैसा कि हम कहते हैं मोनोलेयर। फिजिसॉर्प्शन इज मोनोलेयर। लेकिन अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर इंक्रीजेस एडसॉर्ब लेयर, तो हमारे पास जो इनिशियल ये ब्लैक में जो है, जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उतना आपके पास अंडर प्रेशर मोर लेयर्स ऑफ एडसॉर्बेट हमारे पास बनेंगे। अब कीमिसॉर्प्शन में क्या होगा, अब कीमिसॉर्प्शन को समझे, लेट्स सपोज दिस इज द एडसॉर्बेंट जो कि पार्टिकल को अटैच करेगा। अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास केमिकल इंटरेक्शन होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ट्रांसफर ऑफ या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, यहां पर पार्टिकल आएंगे, अटैच होंगे, लेयर बन गया, सही है। एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, एक केमिकल रिएक्शन हो गया, बॉन्डिंग हो गई यहां पर, सही है। अब हम कहते हैं कि कीमिसॉर्प्शन में एडसॉर्ब नंबर ऑफ एडसॉर्ब लेयर क्या होंगे, तो हम कहते हैं कि हमारे पास कीमिसॉर्प्शन में क्या होगा, मोनोलेयर होंगे, मोनोलेयर। यहां पर हमने कहा था मोनोलेयर होगा, लेकिन अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारे पास लेयर बढ़ जाएंगे। लेकिन कीमिसॉर्प्शन में हम कहते हैं कि हमारे पास मोनोलेयर बनेगा ऑफ दी एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेट का मोनोलेयर बनेगा। क्यों बनेगा, देखिए हम कहते हैं कि हमारे पास केमिकल इंटरेक्शन होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये सरफेस जो है एडसॉर्बेट, ये जो क्या है एडसॉर्बेंट, और ये हो गया एडसॉर्बेट। एडसॉर्बेंट सरफेस प्रोवाइड कर रहा है एडसॉर्बेट को। जब एडसॉर्बेट को सरफेस प्रोवाइड कर रहा है तो जितना सरफेस यहां पर होगा वो इनिशियली एडसॉर्बेट ऑक्युपाई कर लेगा, यहां पर रिएक्शन हो जाएगा। इस सारे को मैं कवर करता हूं, ये सारा सरफेस जो है ये ऑक्युपाई हो गया, यहां पर इंटरेक्शन हो गई। जब सरफेस ऑक्युपाई हो गया, देयर इज नो मोर सरफेस अवेलेबल फॉर द एडसॉर्बेट टू मेक बॉन्डिंग विद द सरफेस या विद द एडसॉर्बेंट। जब मोर सरफेस आपके पास नहीं होगा, अवेलेबल सरफेस के जहां पर मॉलिक्यूल या एडसॉर्बेट आके अटैच हो और अटैचमेंट के बाद एक रिएक्शन बना के वहां पर एडहेर हो जाए, तो आपके पास और लेयर बनेंगे नहीं। जब और लेयर नहीं बनेंगे तो इसका मतलब है कि कीमिसॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली मोनोलेयर बनाएगा, ना कि मल्टीलेयर। और इसमें मोनोलेयर होगा फिजिसॉर्प्शन में, लेकिन जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतना हमारे पास लेयर बढ़ते जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन एंड इट्स डिफरेंट टाइप। होप you can understand the different type of adsorptions which are physisorption and chemisorption. If you want to take a screenshot, you may take it from the board. For more videos, subscribe Unlock Pharma with Dr. Umer. Thank you.